Hello students, once again welcome back to my channel. I hope you all are very well. So this is our second part of the MCQ series in which we are going to solve the next 35 questions. And if you have not watched the video in which the first 35 questions are discussed and explained, please go and watch it. So now let us start the questions from anthropological thoughts on culture and society one by one. The 37 question states that a recent development in the American anthropology associated with the core ideas of Julian Stewart Leslie White. This new approach has stretched on the multilinear process of cultural evolution. This was an approach in which all the previous theoretical contribution found a balanced synthesis. This approach emphasized upon quantitative differences, which implied that culture can be ranked along some scale. This new approach is known as neo evolutionism. Friends, we know that the concept of evolution has already been given with reference to organism, which refers to species. But this questions ask the statement regarding the evolution of culture. So many theories have already been prescribed for evolution of culture, but this question it states that the new evolution theory, which have been associated with the ideas of Julian Stewart and Leslie White, it means to say that the main ideas of the Julian Stewart and Leslie White are contributed in this theory, and all those previous theory have found a balanced system in this theory, and it was found that this have emphasized that culture have ranked along some scale. So this is known as neo evolutionarism, right? So we can also say that new evolutionism means a long-term directional evolutionary social change and with the regular pattern of development. हम इसका मतलब ये समझ सकते हैं कि न्यू इवोल्यूशन का मतलब होता है नया इवोल्यूशन होना, नया चेंज आना एक डायरेक्शनल फॉर्म में, एक अरेंजमेंट फॉर्म में, एक अरेंज्ड सिस्टमेटिक फॉर्म में आता है, और वो जो चेंज आता है वो सोशल चेंज होता है, और वो चेंज हम धीरे धीरे आता है, एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है और एक पैटर्न में आता है जो भी डेवलपमेंट होते हैं. Moving on to the question number 38, what are the three stages of cultural evolution? फ्रेंड्स, वी नो दैट मॉर्गन और टाइलर ने कल्चर को तीन पार्ट में डिवाइड किया था. उसकी तीन बेसिक इवोल्यूशनरी स्टेजेस दिए थे. पहला था सैवेगरी, दूसरा था बार्बेरिज्म एंड तीसरा सिविलाइजेशन. इस सैवेगरी का पहला मतलब था जब फायर का आविष्कार हुआ था, जब बो एंड एरो धनुष बाण का यूज़ हुआ था, जब पॉटरी आई थी. बार्बेरिज्म मतलब होता है जब एनिमल का डोमेस्टिकेशन शुरू हुआ था, जब एग्रीकल्चर प्रैक्टिसाइज होना शुरू हुए थे. और सिविलाइजेशन का मतलब होता है जब राइटिंग प्रिवेल की थी. तो ये तीन स्टेजेस थे कल्चर इवोल्यूशन के. मॉर्गन और टाइलर ने कल्चर जब इवेल्युएट करता है उसके तीन फॉर्म दिए थे, तो ये तीन फॉर्म यही थे. क्वेश्चन नंबर 39 कहता है, इट इज़ नॉट बायोलॉजिकल, इट इज़ द टोटल वे ऑफ लाइफ ऑफ पीपल. इन इट्स मॉडर्न कोनोटेशन इट इज़ हेल्ड टू बी सोशली ट्रांसमिटेड लर्न बिहेवियर. ये एक स्टेटमेंट, हमें ये पता करना है कि ये स्टेटमेंट किस चीज़ को रिफ़र कर रहा है. ये कह रहा है कि ये बायोलॉजिकल नहीं है, ये हमें जब हम न्यू बॉर्न होते हैं तभी से हमारे अंदर नहीं आता है. ये बस लोगों के जीने का तरीका होता है, और ये हमेशा सोशली सामाजिक तौर पे ट्रांसमिटेड होता रहता है, हमेशा सीख से मिलता है और ये ट्रांसमिट होता रहता है, और इसको हम लोग कल्चर कहते हैं. Question number 40 states that the term in shorter cultural anthropology stand for a process of transmission of culture from one culture to other, thereby bringing about change in recipient culture. It is concerned with the phenomena of trade belonging to a culture reaching in new geographical location by contract or migration. ये हमें ये कहता है कि जो कल्चर होता है वो हमेशा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट होता रहता है, उसमें देर कुछ चेंजेस आते हैं. जैसे कि रेसिपिएंट कल्चर होता है, उसमें कुछ चेंजेस आएंगे पुराने कल्चर के कंपैरिजन में. ये एक फिनोमेना होता है जब ये हम लोग नए लोगों से कांटेक्ट करते हैं, नए जोग्राफिकल चीज़ों पे जाते हैं, नई जोग्राफिकल लोकेशंस पे पहुंचते हैं, तो वो चेंज होता रहता है, एक नया कॉन्टैक्ट इमर्ज होता रहता है. इस प्रोसेस को डिफ्यूजन कहते हैं. जब माइग्रेशन के थ्रू या फिर जोग्राफिकल लोकेशन के कॉन्टैक्ट के थ्रू, उसके चेंज के थ्रू जो भी हमें नया कल्चर सीखने को मिलता है, जो भी नया कल्चर ट्रांसमिट होता है, एक रेसिपी जो पहले कल्चर है, जो पहला वाला कल्चर, उसे रेसिपिएंट कल्चर कहा जा सकता है. उसमें जो मिलता है वो होता है डिफ्यूजन, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग द कल्चर फ्रॉम वन टू अनदर, देयर बाय ब्रिंगिंग अ कॉन्ट्रैक्ट चेंज. क्वेश्चन नंबर 48 कहता है, हु डिफाइन कल्चर एज अ मैन मेड पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट. कौन ये स्टेट मानता है कि कल्चर जो होता है वो मैन मेड होता है, उसके आसपास उसके वातावरण में ये आदमी का बनाया हुआ ही है. इसको हर्स कॉविट ने कहा था.
क्वेश्चन नंबर 42 स्टेट्स दैट इन एंथ्रोपोलॉजी वी फाइंड हाउ मेनी काइंड ऑफ सोसाइटी। एंथ्रोपोलॉजी में हमें कितनी सोसाइटीज़ मिलती हैं। फ्रेंड्स, हम लोग नॉर्मल सोसाइटी को बस सोसाइटी से रिफर करते हैं और हमारा मतलब होता है जहाँ पे सोशल हायरार्की और सोशल स्ट्रक्चर होता है। लेकिन एंथ्रोपोलॉजी में कितनी तरीके की हमें सोसाइटी मिलती है, तो हमें मिलती है प्रिमिटिव या सिंपल सोसाइटी, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में प्रिमिटिव और सिंपल सोसाइटी को एक्सप्लेन किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा, आप प्लीज़ उस वीडियो को देखिए। और यहाँ पे एंथ्रोपोलॉजी में प्रिमिटिव और सिंपल सोसाइटी उसको कहा जा सकता है जहाँ पे कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं थी, कोई भी जेंडर बेस्ड और या एज बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता था, और वहाँ पे कोई राइटिंग प्रिवेल नहीं करती थी, वो सिंपल सोसाइटी थी। और कॉम्प्लेक्स और एडवांस सोसाइटी, जब हमें राइटिंग्स का मिलना शुरू हुआ, राइटिंग का डेवलपमेंट शुरू हुआ, हमें नई टेक्निक्स मिली, और जब मैन एंड वुमेन में जो भी डिस्क्रिमिनेशन होना शुरू हुए, वो एडवांस्ड और कॉम्प्लेक्स सोसाइटी में आता है। क्वेश्चन नंबर 43 है, हु केम टू बी नोन एज सिविलाइजेशनलिस्ट। सिविलाइजेशनलिस्ट आर दोज पीपल हु स्टडी अबाउट सिविलाइजेशन। तो इसका आंसर है ऑस्कर लेविस, मैरियट, मिल्टन सिंगर एंड एम बाउंड। इनको सिविलाइजेशनलिस्ट कहा जा सकता है बिकॉज इनकी जो मेन स्टडी थी दैट हैव एम्फसाइज्ड ऑन सिविलाइजेशन स्टडी। Question number 44. Modern anthropological concept emphasize on holistic view of culture, a view which assumes the interrelatedness and interdependence of its various traits, called as functional integration. फ्रेंड्स, फंक्शनल इंटीग्रेशन जो होता है वो सोसाइटी में इंटीग्रेटेड फॉर्म होता है, मतलब वो सोसाइटी का एक एम्बेडेड होता है वो सोसाइटी में। और यहाँ पे फंक्शनल इंटीग्रेशन मतलब सोसाइटी के जितने भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो सोसाइटी में कैसे एम्बेडेड होते हैं, उनका कैसे फंक्शन होता है, उनकी हायरार्की, उनकी कैटेगरीज कैसे डिवाइडेड होती हैं, ये इंस्टीट्यूशन होता है। और वो इंस्टीट्यूशन सोसाइटी में हमेशा एम्बेडेड रहते हैं, हमेशा इंटीग्रेटेड रहते हैं, और वो हमेशा एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंस रहते हैं। एक में चेंज आने का मतलब दूसरे में भी चेंज आना रहता है। सो इसको हम लोग फंक्शनल इंटीग्रेशन कहते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एन आइडिया अपोज्ड to the ethnocentrism of 19th century European scholar. Today, all anthropologists agree that while studying other cultures, they should not overemphasize or impose their values while interpreting the way of life of other people. As all cultures have their own value system, they must be analyzed, comprehended, and interpreted in the terms of their own values. And this view is known as cultural relativism. ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो 19th सेंचुरी के यूरोपियन स्कॉलर्स थे उनका वो इस चीज़ को कंसीडर नहीं करते थे जो अब के स्कॉलर कंसीडर करते हैं, कि किसी भी कल्चर को पढ़ने से पहले, उनको एनालाइज करने से पहले हमें अपने चीज़ों को, अपने व्यूज़ को उस तरीके से नहीं सोचना चाहिए। हमें उस तरीके से ही कल्चर को पढ़ना चाहिए जिस तरीके से वो था। हम कोई भी कल्चर को पढ़ते वक्त अपना कोई वैल्यू सिस्टम उस पर नहीं कर सकते। सारे कल्चर को एनालाइज करना चाहिए, इंटरप्रेट करना चाहिए उसकी खुद की वैल्यू के हिसाब से जैसा कि वो है। उनमें हमारी खुद की वैल्यूज़ को इम्पोज नहीं करना चाहिए दूसरों की कल्चर और लाइफ को पढ़ते हुए। इस तरीके को हम लोग कल्चरल रिलेटिविज्म कहते हैं। Question number 46. It is mainly developed by Julian Stewart and Leslie White in the wake of their ideas of neo-evolutionism. It is notion of research strategy which seems to analyze the major trends with respect to local and worldwide evolutionary modification. This is known as cultural materialism. Now ये क्वेश्चन ये कहता है कल्चरल मैटरिज्म, व्हाट इज कल्चरल मैटरिज्म। ये एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क होता है और एक रिसर्च मेथड होती है किस फिजिकल और इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्शन की रिलेशनशिप को पढ़ने के लिए। अब मैं आपको इसका एग्जांपल दूं तो ये हम ये कह सकते हैं कि प्रोटेक्शन ऑफ काउज क्यों कह सकते हैं, सैक्रेड प्रोटेक्शन ऑफ काउज इसलिए भी कहा जा सकता है कि हम लोग कंसीडर करते हैं काउ को सिर्फ एग्रीकल्चर बेसिस पे, लेकिन हम लोग ये भी तो देख सकते हैं कि काउ जो होता है वो फील्ड वर्क में एज ए लेबर का काम कर सकता है। तो कल्चरल मैटरिज्म सोसाइटी के दो एक्सपेक्ट को पढ़ता है, पहला फिजिकल और दूसरा इकोनॉमिकल। यहाँ पे फिजिकल मतलब होता है द वे, यहाँ पे अगर हम लोग काउ के रेफरेंस में बात करते हैं तो फिजिकल मतलब होता है एग्रीकल्चर के एस्पेक्ट में, बट अगर हम उस एग्रीकल्चर से उसका मिल्क ट्रेड करें तो वो इकोनॉमिकल एक्सपेक्ट हो जाएगा, और फिजिकल एक्सपेक्ट में हम लोग उसको लेबर वर्क की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये कल्चरल मैटरिज्म का डेफिनेशन होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमॉन्ग द फॉलोइंग क्लेम दैट कल्चर इज अ पार्ट ऑफ नेचर। किसने कहा था कि जो कल्चर होता है वो प्रकृति का ही पार्ट होता है। इसका राइट आंसर है क्लाइड
क्लक होन ने ये बात कही थी। 48th क्वेश्चन, डिफ्यूजनिज्म इज अपोज टू इवोल्यूशनरी बिकॉज ऑफ। डिफ्यूजनिज्म हमने अभी बात किया था, द ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर, द चेंज इन कल्चर विद रेफरेंस टू द जोग्राफिकल लोकेशन और विद रेफरेंस टू द माइग्रेशन। तो ये डिफ्यूजन जो होता है वो इवोल्यूशनरिज्म के अपोजिट कैसे होता है, क्योंकि हम लोग ये समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं इवोल्यूशनरिज्म का जो प्रोसेस होता है उन सब में हम सब आदमी के अंदर कुछ ना कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होती हैं और वो यूनिवर्सल होती हैं। पर अगर हम डिफ्यूजनिज्म की बात करते हैं तो इसमें ये कहता है कि कल्चर चेंज होते रहते हैं माइग्रेशन के थ्रू या फिर जोग्राफिकल लोकेशन के थ्रू। तो यहाँ पे जो भी कल्चर माइग्रेट होंगे वो कल्चर में चेंज आएगा और जो कल्चर नहीं हो रहे उन कल्चर में चेंज आएगा। बट यहाँ पे इवोल्यूशनरी का प्रोसेस ये कहता है कि हम सभी कल्चर में कुछ ना कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। The question number 49 is which of the following is associated with functionalism? इसमें से यहाँ पे हमें ऑप्शंस तो नहीं है बट वहाँ पे हमने वन लाइनर आंसर लिखा है, द कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चरल इंटीग्रेशन। क्योंकि फंक्शनलिज्म मतलब फंक्शनलिज्म जो ऐसे नाम से पता चल रहा है वो किसी भी फंक्शन की स्टडी को डिटरमाइन करता है। वो हमेशा किसी भी कल्चर की इंटीग्रेशन को ही पढ़ेगा कि कल्चर, कोई भी कल्चर सोसाइटी में इंटीग्रेटेड कैसे है, उनका वर्क कैसे है। क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेवेंट टू कल्चर चेंज। कल्चर में चेंजेस कैसे आते हैं, जब या तो कोई नया आविष्कार होता है या कोई नई खोज होती है तो कल्चर में चेंज आते हैं। इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज आर टू डिफरेंट थिंग्स और यही हमेशा कल्चर में चेंज लेके आते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 स्टेट्स दैट हु इंट्रोड्यूस्ड द स्टडी ऑफ सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन एक सभ्यता की पढ़ाई का, सभ्यता की संशोधन का किसने विस्तार किया था। इसका द राइट आंसर इज रॉबर्ट रेडफील्ड। Question number 52. The difference between material culture and non-material culture is known as cultural lag. Lag मतलब होता है एक पीरियड ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू थिंग्स। तो मटेरियल कल्चर का मतलब हम समझ लेते हैं। मटेरियल कल्चर का मतलब ये होता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट होता है या फिर कोई आर्किटेक्ट होता है वो लोगों को जब सराउंडेड करता है, लोग जब उसका यूज़ करना शुरू करते हैं, उसका कंजप्शन करना शुरू करते हैं, वो जब क्रिएशन करते हैं, उस चीज़ का व्यापार करते हैं, तो ये मटेरियल कल्चर होता है। और नॉन मटेरियल कल्चर मतलब होता है जब उस लोग उस चीज़ की आइडियाज़ को समझते हैं, एक बिलीफ बनाते हैं सोसाइटी में, उस चीज़ के लिए कोई एटीट्यूड लाते हैं अपने अंदर। तो इसका नॉन मटेरियल कल्चर का एग्जांपल हो सकता है लैंग्वेज हो सकता है, जैसे डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस बोली जा सकती हैं। ड्रेस, जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के लोग अलग अलग ड्रेस पहनते हैं, डिफरेंट कल्चर के लोग डिफरेंट रिलीजन को फॉलो करते हैं, लॉ हो सकता है, पनिशमेंट हो सकता है, ये नॉन मटेरियल कल्चर के अंदर आते हैं। तो मटेरियल कल्चर को नॉन मटेरियल कल्चर तक अंडरस्टैंडिंग के बीच जो भी हमें टाइम का लैग मिलता है उसे कल्चरल लैग कहते हैं। Now the next question is who has given the concept of cultural lag। cultural lag का concept किसने दिया था, विलियम फील्डिंग ऑकबर्न ने ये concept दिया था। The next question, who defined culture as antithesis of civilization। कल्चर को सभ्यता का एंटीथेसिस किसने कहा था, मैकआइवर ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 55, अकॉर्डिंग टू whom एंथ्रोपोलॉजी इज नेचुरल साइंस एंड स्टडीज ह्यूमन सोसाइटी ऑफन यूजिंग द मेथड ऑफ नेचुरल साइंस। किसने ये कहा था कि एंथ्रोपोलॉजी जो होती है, मानव शास्त्र जो होता है, ये एक नेचुरल साइंस होती है, प्राकृतिक विज्ञान होती है और ह्यूमन की सोसाइटी को, ह्यूमन की समाज को पढ़ती है और हमेशा एक प्राकृतिक सभ्यता, प्राकृतिक विज्ञान का ही प्रयोग करती है। इसका सही आंसर होगा रेडक्लिफ ब्राउन ने कहा था ये। क्वेश्चन नंबर 56 कहता है हु इज होल्डर, क्रिएटर, कनेक्टर एंड कस्टोडियन ऑफ कल्चर। कल्चर का होल्डर कौन है, कल्चर को बनाया किसने है, वो अभी तक कौन कल्चर को पकड़ के लेके चल रहा है, कौन कल्चर को कनेक्ट कर रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा हम इंसान, वी द ह्यूमन बीइंग। Question number 57, who considered the symbolic potential of human being the basic of culture। कौन कहता है, ये कौन सोचता है कि ह्यूमन जो कल्चर का बेसिक होता है वो किसी भी इंसान का खुद का पोटेंशियल होता है, वो खुद की स्किल, खुद की नॉर्म्स और खुद की बिलीफ से कल्चर को बेस किया है, खुद कल्चर को बनाए रखा है। ये मानना था लेस्ली ए वाइट का। क्वेश्चन नंबर 58 कहता है व्हाट वाज द नेम ऑफ लेस्ली ए वाइट्स फर्स्ट बुक। लेस्ली ए वाइट की पहली पुस्तक का नाम था द इवोल्यूशन ऑफ कल्चर। क्वेश्चन नंबर 59, कार्डिनर्स वर्क वॉज काउंटेड इम्पॉर्टेंट एंड सपोर्टेड बाय विच रिसर्चर। कार्डिनर का जो वर्क था वो एक मतलब किस रिसर्चर के द्वारा सही मतलब सपोर्ट किया गया था, वो थे मेल्टॉन सिंगर। फ्रेंड्स यहाँ पे सिंगर की बजाय यिंगर रहेगा, इनका पूरा नाम जॉन मेल्टॉन यिंगर था और इन्होंने फंक्शन की डिफिनेशन दी थी विद रेफरेंस टू रिलीजन। इन्होंने रिलीजन को आगे रखकर फंक्शनल की डिफिनेशन दी थी।
Question number 60. Du Bois research was backed financially and professionally by whom? डू बॉयस के वर्क को फाइनेंशियली और प्रोफेशनली किन्होंने सपोर्ट किया था? इसका राइट आंसर होगा रुथ बेनेडिक्ट, जो कि साइंस रिसर्च काउंसिल ऑफ कोलंबियन यूनिवर्सिटी में वर्क करते थे। क्वेश्चन नंबर 61. मॉडल पर्सनैलिटी वॉज द टर्म गिवन बाय विच एंथ्रोपोलॉजिस्ट? किन्होंने मॉडल पर्सनैलिटी का टर्म दिया था? इसका राइट आंसर है कोरा ड्यू बॉयस। क्वेश्चन नंबर 62. मॉडल पर्सनैलिटी थ्योरी वॉज बेस्ड ऑन विच बुक? जो मॉडल पर्सनैलिटी का टर्म था, उनका जो ये थ्योरी थी, वो किस किताब पर आधारित थी? इसका राइट आंसर होगा द पीपल ऑफ एरोल, सोशियो साइकोलॉजिकल स्टडी ऑफ एन ईस्ट इंडियन आइसलैंड। दिस इज द नेम ऑफ द बुक। Question number 63. Death was a major occasion for elaborate mourning in which tribe observed by Benedict? किनका ये मानना था कि जो मेजर ओकेजन था, मतलब किन ट्राइब के कौन ये कहा था कि जो डेथ का ओकेजन होता है ये बहुत बड़ा मतलब शोक मनाने का ओकेजन होता है इन ट्राइब के लिए? इनका कहना था क्वाटिविटी ट्राइब, ये ट्राइब का नाम है, इनके रेफरेंस में ये कहा गया था बेनेडिक्ट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 64. प्रैक्टिस ऑफ विच टू ट्राइब्स वर ऑब्जर्व बाय रूथ बेनेडिक्ट फॉर हर बेसिक पर्सनैलिटी थ्योरी? अब जो रूथ बेनेडिक्ट ने किस ट्राइब के बारे में बात की थी? तो ये इन्होंने ज़ोनी ट्राइब जो साउथ वेस्ट अमेरिका में है मिलते हैं, और क्वाटिविटी जो नॉर्थ ईस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका में है, इन्होंने इन दो ट्राइब पे स्टडी की थी और इनके बेसिस पे अपनी थ्योरी दी थी, और इनकी थ्योरी जो थी वो पर्सनैलिटी थ्योरी थी। क्वेश्चन नंबर 65. द बिगिनिंग ऑफ कल्चर एंड पर्सनैलिटी इज एसोसिएटेड विथ विच लिंग्विस्ट एंड एंथ्रोपोलॉजिस्ट? इसका राइट आंसर होगा एडवर्ड सैपियर। क्वेश्चन नंबर 66. हु गेव द थ्योरी ऑफ नीड? थ्योरी ऑफ नीड की थ्योरी किसने दी थी? मेलिनोस्की ने दी थी। फ्रेंड्स, थ्योरी ऑफ नीड्स का ये एक मोटिवेशनल थ्योरी थी जो ह्यूमन बीइंग के स्पेसिफिक अचीवमेंट को डिटरमाइन करती है, उसको स्टडी करती है। क्वेश्चन नंबर 67. हु वॉज द फाउंडर ऑफ स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म? द राइट आंसर इज रेडक्लिफ ब्राउन। स्ट्रक्चरल फ्रेंड्स, फंक्शनलिज्म दो टाइप में डिवाइडेड होता है, जो मेलिनोस्की ने स्टडी की थी सिर्फ और सिर्फ फंक्शनलिज्म को लेकर, और दूसरा रेडक्लिफ ब्राउन ने स्टडी की थी स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म को लेकर। तो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म के फाउंडर जो है वो रेडक्लिफ ब्राउन है। वो सोसाइटी को एज ए स्ट्रक्चर देखते हैं और तब उसके फंक्शन को स्टडी करते हैं। 68 states that how many type of basic instruments need are there? Instrumental needs, friends, 4 types के थे: इकोनॉमिक, सोशल कंट्रोल, एजुकेशन एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, और ये 4 हैं। क्वेश्चन नंबर 69. What were the versions of functionalism developed between the year 1910 to 1930? 1910 से लेकर 1930 तक के बीच में फंक्शनलिज्म की कितनी वर्जन आई थी, कितने प्रकार आए थे? तो इसके दो थे। मेलिनोस्की के बायो कल्चर या फिर साइकोलॉजिकल फंक्शनलिज्म आया था, और रेडक्लिफ ब्राउन का स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म आया था। क्वेश्चन नंबर 70. व्हाट आर द 4 टाइप्स ऑफ बेसिक इंस्ट्रूमेंट एज पर मेलिनोस्की? हमने अभी क्वेश्चन नंबर 68 में भी इसको डिस्कस कर लिया था। मेलिनोस्की के अकॉर्डिंग 4 टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स नीड हैं, मतलब सोसाइटी में रहने के लिए जो बेसिक इंस्ट्रूमेंट हमें चाहिए वो इकोनॉमिक्स है, मनी है, सोशल कंट्रोल है, एजुकेशन है एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, जो आज की कॉम्प्लेक्स सोसाइटी में भी देखी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 71. व्हाट डिड रेडक्लिफ ब्राउन फोकस्ड ऑन विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म? हमने अभी आपको डिस्कस करते वक्त पहले ही बता दिया था कि रेडक्लिफ ब्राउन का जो सोशल स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म था वो बेसिकली सोशल स्ट्रक्चर पर था। वो सोसाइटी को एज अ होल देखकर उसके स्ट्रक्चर पर स्टडी करना चाहते थे। उन्होंने सोशल स्ट्रक्चर के बेसिक सिंपल पार्ट्स भी दिए थे, जो कि सोशल स्ट्रक्चर इंटरनली कैसे अरेंज होता है, उसमें क्या क्या पार्ट कंसिस्ट किए जाते हैं। और ये हमारा सेकेंड पार्ट इस क्वेश्चन के साथ कंप्लीट होता है। इसके आगे भी आपको थर्ड पार्ट दिया जाएगा जिसमें हम अगेन 35 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, प्लीज़ लाइक द वीडियो, प्लीज़ शेयर द वीडियो, सो दैट आप अगले क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर सकें, क्योंकि हम सभी सारे क्वेश्चंस को अच्छे से डिस्कस करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच।